नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। যে ক্যাম্প করা প্রত্যেকটা গরিব দুঃখী মানুষের পাশে দাঁড়া, তার জন্য মমিতাদি এবং মমিতাদির টিমকে প্রচন্ড के पास जाने के बाद, लोगों के नजदीक जाने के बाद लोगों को समझाना जरूर मिलता है कि हमारा नेता हमारे बीच में, हमारे साथ में है, हमारे साथ दूर भी खड़ा है, छोटे भी करते हैं। वैसे नेता है उजलदा लगातार वर्षों से, जब से नेता आई है लगातार घूम रहे हैं, कल भी लगातार घूमे हैं। टीएमसी के काउंसिलर, टीएमसी के कार्यकर्ता, टीएमसी के नेता, सारे लोग गरीबों के बीच आम बस्ती में जिनका घर गिरा है, जिनका जहाँ पे पेड़ गिरा है, जहाँ আগামী দিন তৃণমূল কংগ্রেস এইভাবে এগিয়ে যাবে। আমরা আরেকবার ঘোষণা করে দিলাম যে আমরা মানুষের সাথে থাকি, মানুষের পাশে থাকি। আর তৃণমূল কংগ্রেসের কাজ করে আপনারা সবাই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে থাকুন। তৃণমূল কংগ্রেস সবাই আপনাদের পাশে আছে, পাশে থাকবে। এগুলো আমি আজকে দেখি যে বিশেষ করে আমাদের মা বোনেরা বেশি আছে এখানে। আর এইটাই একটা পার্টির নেতৃত্ব, যারা পার্টি করছে, যারা নেতৃত্ব করছে, তাদের দরকার আছে কি যারা বঞ্চিত আছে, যারা গ্রামের অধিবাস করছে, যাদের কিছু পাচ্ছে না, তাদের জন্য মেডিকেলি ফিটনেস হওয়া খুব দরকার। এবং ওইটা মেন পার্টির উদ্দেশ্যে সবাই আগে থাকে। বিশেষ করে যারা শহরের কাছে, যারা বিশেষ বাড়িতে থাকে, এসি এর কন্ডিশন। এবং আমি ধন্যবাদ জানাই মহিলাকে যে সে এরকম কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজের মানুষের, সাধারণ মানুষের অনেক উপকার হয়। স্বাস্থ্য শিবির হোক, রক্তদান শিবির হোক, এইগুলো পুলিশ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এবং পুলিশ ব্লক যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে করা হবে। যারা আজকে এই সমাজে যারা উপস্থিত আছেন পুলিশ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস, তৃণমূল যুব কংগ্রেস সভাপতি বিমা আছে, পুলিশ ব্লক সুন্দরানা চৈতন্য গোপাল, সরল কর্মনা প্রাক্তন কাউন্সিলর তিনজন আছেন। সবাইকে আমি এই জন্য ধন্যবাদ জানাই এবং চতুর্ভুজের ভালো কাজ যেটা সমাজের উপকার হয় সেই কাজটা করতে তাদের সব ধন্যবাদ জানাই। মন্ত্রীকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাবো যেটি এইসব কার্যক্রম করে থাকেন এবং আগামী দিনে যারা পরে তৃণমূল কংগ্রেস পুরোপুরি তাদের সহযোগিতা থাকবে, মাথা রাখবে যাতে মানুষের, সাধারণ মানুষের উপকার হয়। আমাকে এক ধরনের মানুষ বলবে সপ্তাহে 15 নম্বর লাগবে, এরকম স্বাস্থ্য শুরু হবে। আমি মানুষকে এই জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সেও একটা ভালো কাজ করতে। আমার শুভকামনা রইল আগামী পুলিশ ব্লক তাদের পাশে থাকবে মানুষের এবং মহানতা জানাই এই প্রোগ্রামে আগামী দিনে আমাদের দলকে আরো অনেক উঁচুতে নিয়ে যাবে এবং আগামী দিনে আরো তোমরাই ছড়িয়ে পড়বে। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস আমাদের কাছে অত্যন্ত গর্বের একটা সংগঠন। এই সংগঠন আমরা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসে দেখতে পেতে পারি এবং এই সম্মান আমরা মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসে পেতে পারি। কি কার্যক্রম দিদি আজকে এখানে কুলটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস থেকে একটা বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। তো আমরা মহিলারা সবাই মিলে একটা উদ্যোগ নিয়েছি এবং আমরা কাঞ্চনদাকে বলেছিলাম যে দাদা আমরা একটা করবো প্রোগ্রাম। তো কাঞ্চনদা এবং উজ্জ্বলদাকেও বলেছিলাম। উজ্জ্বল এবং কাঞ্চনদার অনুমতিতে এবং চৈতন্যদা আছেন, রবিদা আছেন, বিমান আছেন, অনিমাদি আছেন এবং সমস্ত যত নেতৃত্ব আছে পাটুলি ভারতের সকলের উপস্থিতিতে আমরা এই ক্যাম্পটা করেছি। কি কতগুলো গরিব মানুষ আছে যারা তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা যাতে বন্দোবস্ত করা হয়। কত লোক আজকে লাভ পালে এখানে? প্রায় 100 উপর জন আজকে লাভ পেয়েছে। এই তো রোগী দেখানো হচ্ছে, চিকিৎসা হচ্ছে, সকলকে দেখানো হোক, তারপর জানতে পারবো। মোটামুটি 100-150 উপরে ছাড়িয়ে যায়। কি যাঁচ হয়েছে এখানে? এখানে সুগার হচ্ছে, প্রেসার হচ্ছে, পা ব্যথা, হাঁটু ব্যথা, যে কোনো রকমের ব্যথা এবং অ্যাপেন্ডিক্স হোক, গলব্লাডার হোক, সমস্ত রকম রোগের চেষ্টা করা হচ্ছে তাদের উপশম। আপনার পরিচয়? আমি মৌমিতা সেনগুপ্ত, পশ্চিম বর্ধমান জেলার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস জেলার জেনারেল সেক্রেটারি এবং কুলটি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্পাদিকা, অর্গানাইজিং খুব ভালো কাজ করেছে মৌমিতাদি এবং আমাদেরকে সবাইকে ডেকেছে, আমরা এসেছি, যোগদান করেছি, ভালো লাগলো।
খুবই খুবই ভালো কাজ। আর আমরা টিএমসিরা সবসময় ভালো কাজ করে থাকি। এই যে ঝড় হলো, দুর্যোগ হলো, সেখানে কিন্তু আমরা কোনো বিজেপির নেতাকে দেখতে পাইনি। কারণ ওখানে লোডশেডিং, কারেন্ট ছিল, কিন্তু মানে জলের ব্যবস্থাটাও ঠিকঠাক হয়নি। মানে এত দুর্যোগে কোনো বিজেপি নেতা আসেনি। আমরা টিএমসিরা সমস্ত গাছ কাটার ব্যবস্থা করেছি, এসেছি, দাঁড়িয়েছি। আমাদের উজ্জ্বলতা আছে, সবাই আছে, উনি এসেছিলেন, আরও সবাই আছে যারা এই ব্যবস্থার মানে এই যে কুর্তির যে পরিষেবা দিয়েছে আমরা সবাই টিএমসিরা, সেই জন্য আমরা নিজেদেরকে গর্ববোধ মনে করছি। আপনার পরিচয়? আমি কুর্তি ব্লক মহিলা টিএমসি সেক্রেটারি কাকুরি চ্যাটার্জি। আজ এখানে সরকার হসপিটাল থেকে ডাক্তার হেলথ ক্যাম্প হয়েছে। সবাই যারা যারা আসতে চায় আসতে পারে, ফ্রিতে হেলথ চেক আপ হয়েছে। যারা যারা এখনো আসতে চান আসতে পারে। কেমন লাগছে এখানে কাজ করতে? ভালো লাগছে, মানুষের হেল্প হচ্ছে, আমাদেরও ভালো লাগছে। আমরা ফার্স্ট টাইম এক্সপিরিয়েন্স করছি এরকম কোনো কাজ, ভালো লাগছে। থ্যাংক ইউ মৌমিতা আন্টি। আপনার নাম? আমার নাম অঙ্কিতা মিত্র নিয়োগী। আপনার নাম? সুস্মিতা মিত্র নিয়োগী। কেমন লাগছে এখানে? ভালো লাগছে, সবাই এসেছে। আমিও ফার্স্ট টাইম এখানে কাজ করছি। আমাদেরকে হেল্প করবে, ফার্স্ট টাইম দেখছি, ভালো লাগছে। के द्वारा आप लोग आए हैं? हम सदर हॉस्पिटल से आया दुर्गापुर मोलानी। अभी तक 30 पेशेंट देखा। पेशेंट का रिस्पॉन्स अच्छा है। बहुत गरीब पेशेंट आया दिखाने के लिए। एक्चुअली मेरा हॉस्पिटल में स्वास्थ्य कार्ड में पूरा होता, टेस्ट का भी पैसा नहीं लेता, कुछ पैसा नहीं लेता, पूरा हेल्थ कार्ड में टोटली कर देता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसा होता उसा हिसाब से एक पैसा पेशेंट मरीज का पास नहीं लेता। ये पॉजिटिव दिख है मेरा हॉस्पिटल का। औषध वगैरह भी दे रहे हैं क्या? औषध वगैरह फ्री है, टेस्ट वगैरह फ्री है, OT भी फ्री है, सब हेल्थ कार्ड में कर देता हम लोग। किस टाइप का पेशेंट ज़्यादा आ रहा है? किस टाइप का पेशेंट आज ज़्यादा है? गरीब पेशेंट थोड़ा ज़्यादा है। मतलब हार्ट का या प्रेशर का? ना, प्रेशर शुगर ज़्यादा है। আপনার পরিচয়? मैं सदर हॉस्पिटल का मार्केटिंग मैनेजर है। मेरा नाम मोनिरुल मंडल। किस तरह का पेशेंट यहाँ पे आज आप लोग जांच कर रहे हैं? लड़की के जो प्रॉब्लम होते हैं गाड़ी रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड আপনার পরিচয়? मैं मल्लिका रॉय, सोनाका इंस्टीट्यूट ट्रस्ट के अंडर में काम करती हूँ। কি कार्यक्रम ছিল এখানে? आज यहाँ पे एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ था। हमारी जिला के ही नेत्री मौमिता बैनर्जी, मौमिता सेनगुप्ता, उनके नेतृत्व में ही एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। यहाँ उपस्थित थे हमारी और जिला की नेत्री माला माझी, हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट इंद्रानी मिश्र, बोरो चेयरमैन, काउंसिलर टुम्पा और भी बहुत गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित थे। साथ में सर्वोपरि जो लोग यहाँ अपने चिकित्सा के लिए हाजिर हुए थे वे सभी यहाँ उपस्थित हैं। अभी तक डॉक्टर को दिखा रहे हैं। देखिए, क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग डॉक्टर के पास जाकर लाइन लगाकर दिखाने में उन्हें परेशानियाँ होती हैं। बहुत समय आर्थिक रूप से भी बहुत लोग सशक्त नहीं होते हैं, जिसके कारण उन्हें जाने में असुविधा होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए ही मौमिता ने यहाँ इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया है। आज स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है, लेकिन आगामी दिन अगले महीने ही 11 तारीख को एक ब्लड डोनेशन कैंप भी होगा, जिसका आयोजन हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट कुल्टी की इंद्रानी मिश्र के नेतृत्व में होगा। यही हमारी संस्कृति है। जिस प्रकार ममता बनर्जी जी ने बोला था, माँ मिट्टी मनुष्य की सरकार होगी, हम लोगों की हमें हमेशा चाह होती है कि हम लोग लोगों के साथ रहें, उनकी सुविधा असुविधा को मद्देनज़र रखते हुए ही हम लोग अपने कार्यसूची के हिसाब से हम लोग चलते रहें। धन्यवाद। दीदी आप काम कर रहे हैं,
और स्टेट लेवल में अच्छा लेवल में है, हम लोग नेशनल लेवल पर भी जा रहे हैं। दीदी को हम लोग एक चेहरा बना रहे हैं। बिल्कुल नेशनल, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पश्चिम बंगाल में ही जो उन्होंने इतना डेवलपमेंट किया है ममता दीदी ने, आज पूरा भारतवर्ष उनकी तरफ अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं। क्योंकि जब भी आवाम को कुछ भी, चाहे वो नोटबंदी कह लीजिए, चाहे जीएसटी कह लीजिए, चाहे सीए कह लीजिए, चाहे एनआरसी कह लीजिए, सबसे पहली अगर बुलंद आवाज किसी की थी तो वो ममता बनर्जी जी की ही थी। अभी सारे विरोधी दल जो हैं वो देख चुके हैं कि डबल इंजन वाली सरकार जहां जहां पर है वहां उन्नति के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां केंद्रीय सरकार की इतनी वंचना, सीपीएम का जहां राज था 2011 साल के पहले, शासन के नाम पे 34 सालों में जिन्होंने शोषण किया, उसके बावजूद भी ऋण का बोझा लेने के बाद भी ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में जो विकास की जो स्वाद लोगों को चखाई, उनके विकास के माध्यम से ना केवल वो पश्चिम बंगाल में पूजी जाती हैं, ना केवल भारतवर्ष में, बल्कि उनकी एक एक ऐसी कार्य सूची है जिसके माध्यम से वो विश्व में पूजी जा रही हैं। इसलिए सारे भारतवर्ष की दृष्टि ममता बनर्जी जी की तरफ है कि वो जिस प्रकार पश्चिम बंगाल का विकास इतनी सुविधाओं के बावजूद भी कर रही हैं, वैसे भारतवर्ष में भी ऐसा ही विकास हो, यही सबकी इच्छा है। ये आवाम की इच्छा है, जनता जनार्दन की इच्छा है, आम आदमी लोगों की। 2024 का इलेक्शन 2024 में ममता बनर्जी जी प्रधानमंत्री बन रही हैं, दावे के साथ ही बात। अच्छा, अभी बंगाल फाइल बोल करके, बंगाल डायरी बोल करके, एक डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल बोल करके एक मूवी आई है, फिल्म आया है, तो उस पर मतलब बंगाल की जो घटना है उसको दिखाया गया। कितना सहमत है इस मूवी से आप? देखिए, मैं तो मूवी देखी नहीं हूँ, बिना देखे तो उसके बारे में मैं कोई भी अपना वक्तव्य रख नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया है। इसे नाचना जाने आंगन टेढ़ा। इतना जब विकास पश्चिम बंगाल में, मैं आपको बोली, इतने मतलब विषम परिस्थितियों के बावजूद भी आप लोगों ने देखा मनरेगा का काम बंद है केंद्रीय सरकार की तरफ से, आवास योजना का पैसा बंद है, सड़क योजना का पैसा बंद है, मिड डे मील का पैसा बंद है, राशन जो दे रहे थे वो भी बंद है। इसके बावजूद भी ममता बनर्जी जी जब लोगों के लिए इतना विकास कर रही हैं, कुछ ना कुछ तो बोलना ही है ना। मैं फिर बोल रही हूँ, पश्चिम बंगाल में तालिबान राज नहीं हो रहा है। आप जाके देख लीजिए, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और भी भारत के जितने राज्य हैं वहां देख लीजिए। मैं तो कहूंगी कि यहाँ पे जितना सम्मान महिलाओं को मिला है, इसीलिए आज इतनी महिलाएं यहाँ पे उपस्थित है। खाली यही नहीं, जब अभिषेक बनर्जी जी का तृणमूल नवोजुआर जब कर्मसूची हो रहा था, किसी को जबरदस्ती घर से नहीं लाया गया था, लेकिन जहां भी वो गए थे, यहाँ तक कि स्कूटी ब्लॉक से भी लाखों लोग गए थे अभिषेक बनर्जी जी को देखने के लिए। और सीबीआई और ईडी लगाकर ममता बनर्जी जी के विकास को नहीं रोका जा सकता। आप लोगों ने देखा जब अभिषेक बनर्जी जी ने बोला कि 60 दिन तक तृणमूल नवोजुआर करेंगे, वो नवोजुआर तो जन जोआर में परिवर्तित हुआ। ये आप लोगों ने भी देखा है। यहाँ तक कि वो कर रहे, पहले क्या बोले विरोधी लोग, अरे 5 दिन कोरबे घरे ढुके जाते। उन्हें पता नहीं है कि ये ममता बनर्जी जी का दल है। हम लोग ग्रास रूट में राजनीति करते हैं, ठंडे घर में बैठ के राजनीति करने वालों में से हम लोग नहीं हैं। इसलिए क्या किया, जब फिर बोल रही हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, जब कुछ नहीं हुआ तब क्या हुआ, चलो अभिषेक को एकदम कितने शॉर्ट नोटिस में सीबीआई ने बुलाया। क्या कर लिए बुला के, रोक सके, दूसरे दिन उनके प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से देके, फुल्ली कोऑपरेशन करके दूसरे दिन फिर नवोजुआर प्रोग्राम में वो शामिल हुए। तो इस तरह तृणमूल कांग्रेस को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी संगठन है, फिर बोली माँ मिट्टी मनुष्य की सरकार है, जहाँ पे जिस संगठन के साथ माँ लोग रहेंगी, मिट्टी का जहाँ लगाव है, मनुष्य जहाँ रहेगा, वहाँ क्या करेगी सीबीआई और ईडी। और एक बात और बता दूं, ममता बनर्जी जी जो अन्याय करते हैं, चाहे वो कोई भी हो,
उसके साथ कोई सुलह नहीं करती है। इसीलिए तो 2021 में बोल कर गए थे अब की बार 200 पार, लेकिन पश्चिम बंगाल की आवाम 200 की मार देकर भगाई। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये मेरा कहना नहीं है, क्योंकि केंद्रीय सरकार की ये वंचना है, सीपीएमओ का ये उछल कूद है, जो ऐसे ही अभी 0 बल्ब का वार्ड भी नहीं है सीपीएम। इतना ही कहना चाहूंगी, ये मेरी आवाज नहीं है, पूरे पश्चिम बंगाल की आवाज है, आवाम की आवाज है, पूरे भारतवर्ष की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल। धन्यवाद।